Hi friends, how are you? I'm going to teach you English and today we are going to learn the first chapter of your English textbook Standard 10, A Letter to God. It is surprising, no? Can anyone write a letter to God and get his reply? Yes, it's possible in this letter. It is written by G.L. Fintus. It's very interesting story. Lencho is a farmer and he wants some help from the God, and he is writing a letter to God. And in which condition he writes a letter to God? Actually, when his crops were ruined by a hailstorm. A hailstorm came and completely ruined its crop, and he demanded God 100 pesos. So, did God write the reply? Did God send the money? You try to know by yourself by reading and understanding this chapter. Post office is the place now mostly we are not visiting, but once was the time when post office was a very important place for everyone to post the letter and receive the letter. For many works we had to go to the post office. So let us try to understand this chapter. The house, the only one in the valley, entire valley, sat on the crest. Crest means on the top of the hill. And from this height one could see the river and the field of the ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. So his farm was ready with a good harvest. अच्छा crop होने वाला था इस बार. और the only thing the earth needed was a downpour. मतलब थोड़ी बारिश की जरूरत थी. At least a shower. एक आध बार भी थोड़ी बारिश हो जाती तो अच्छा होता. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields ultimately, he had done nothing, means he had only waited for the sky. He was looking to the sky, waiting for the rain to come. Now, he said, we are really going to have some water, woman. He told his wife. The woman who was preparing supper, means late night dinner, replied, yes, God willing, agar Bhagwan ne chaha to. The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house, until the woman called to them. वुमन मतलब उसकी वाइफ ने सबको खाने के लिए बुलाया. कम फॉर डिनर एवरीवन. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड. प्रेडिक्टेड मतलब जैसे उसने भविष्यवाणी की थी. दैट रेन स्टार्टेड. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. बारिश के जैसे माउंटेन्स आ रहे थे ऐसा लगता था. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. ही वॉज वेरी हैप्पी that at least we'll get some water. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. So he wanted to feel. बहुत जब गर्मी लगती है तो हम बारिश में अपने बदन को थोड़ा कूल करने के लिए जाते हैं ना जब बारिश होती है. तो ये भी इसी तरह से गया था. And when he returned he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky. ये raindrop नहीं है, ये पैसे गिर रहे हैं, पैसों की बरसात हो रही है. They are new coins. The big drops are of 10 cent and the little ones are 5. कोई भी फार्मर अपने जब खेत में बारिश होती है तो उसे लगता है वो पैसे की बारिश हो रही है क्योंकि वो क्रॉप के बेच के उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं. With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with flowers. Draped means covered in a curtain of rain. बारिश होने लगी पर भगवान को कुछ और मंजूर था. But suddenly a strong wind began to flow and along with the rain very large hailstones, मतलब बर्फ के गोले गिरने लगे, began to fall. These truly did resemble मतलब look alike. ये न्यू सिल्वर कॉइन्स जैसे लगते थे. The boys exposing themselves, उनके बच्चे भी बारिश में नहाने लगे. They ran out to collect the frozen pearls. So ये जो ओले गिर रहे और जो ओले गिर रहे थे वो फ्रोजन पल्स की तरह लगते थे इनको. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. अब उसको पता चला है कि अब परिस्थिति बिगड़ रही है. आई होप इट पासिस क्विकली. जल्दी से ख़त्म हो जाए तो अच्छा. बट इट डिड नॉट पास क्विकली. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस. बारिश होने लगी 1 घंटे तक. द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ इट वॉज कवर्ड विथ सॉल्ट. जैसे किसी ने उस पर नमक डाल दिया हो ऐसा पूरा फील्ड लग रहा था. नॉट अ लीफ रिमेन ऑन ट्रीज.
एक भी लीफ, कोई भी ट्री पे अब सूखा नहीं रह गया था. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय. इसका जो क्रॉप था बुरी तरह से खत्म हो चुका था. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. दुखी दुखी हो गया बेचारा लेंचो. अब क्या करूँगा. एक फार्मर की सबसे बड़ी आशा उसका क्रॉप होती है. जब वो बर्बाद हो जाता है तो उसे बहुत दुख होता है. When the storm had stopped, he stood in the middle of the field and said to his sons. अपने बच्चों को बोलने लगा. A plague of locust. Locust मतलब तीड़, माना टिड्डे. तीड़ भी आते हैं तो इतना नहीं खाते, वो भी कुछ बचा चाहते हैं. यहाँ सेंटेंस में लिखा है A plague of locust would have left more than this. आप देख सकते हो. The hail has left nothing. This year we will have no corn. इस बार हमें कोई भी कॉर्न नहीं मिलेगा. That night was a sorrowful one. वो रात उनके लिए दुख भरी थी. All our work for nothing. के पूरा साल हमने काम किया लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला. There is no one who can help us. हमें कोई हेल्प नहीं कर सकता. We will all go hungry this year. हम सब भूखों मर जाएंगे. But in the hearts of all who lived in that solitary means alone house in the middle of the valley, there was a single hope. एक आश तो बची थी. Help from God. हम भी जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो हम भगवान के पास चले जाते हैं. एग्ज़ाम बुरी गई, भगवान के पास. रिजल्ट का डर लगता है, भगवान के पास. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. उसने अपने बच्चों को बोला कि अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं. रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भी भूख से मरेगा नहीं. नो वन डाइज ऑफ हंगर. दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर. अगर भगवान ने हमें जन्म दिया है तो वो खाना भी ज़रूर देगा. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. वो एक ही है होप के बारे में सोच रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड. हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग. के भगवान की आंखें सब कुछ देख लेती हैं. इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस. आदमी के दिल में, आदमी के आत्मा में क्या चला है वो भी भगवान देख लेते हैं. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन. मतलब ही वॉज ए एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग पर्सन. ही वॉज वर्किंग लाइक एन एनिमल. वो एक एनिमल की तरह खेत में काम करता था, पर उसे लिखना आता था. बट ही स्टिल न्यू हाउ टू राइट. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक मीन्स अर्ली मॉर्निंग ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी. उसने लेटर लिखा और वो खुद जाके उसने पोस्ट में डाला. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. उसने भगवान को लेटर लिखा था. हाउ सरप्राइजिंग एंड हाउ कॉन्फिडेंट ही वॉज. गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. अगर आप मुझे मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा फैमिली भूखों मर जाएंगे. आई नीड 100 pesos. मुझे, ये नॉर्थ अमेरिकन करेंसी है, कि मुझे 100 pesos चाहिए टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म. हेल स्टॉर्म, ये सेंटेंस ये बोलना चाहता है बिकॉज द हेल स्टॉर्म हैज़ लेफ्ट नथिंग. हेल स्टॉर्म ने हमारे लिए कुछ छोड़ा नहीं है. ही रॉट टू गॉड. ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप. भगवान पे लिखा टू गॉड. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू डाउन. अभी भी वो परेशानी में था कि भगवान हेल्प करेंगे करेंगे. एट द पोस्ट ऑफिस से प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू मेल बॉक्स. उसने मेल बॉक्स में लेटर डाल दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन, एक वहाँ एम्प्लॉय था जो पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था. He was laughing like anything to receive this letter. Went to his boss laughing heartily and showed him the letter. See this letter. To whom this person has written a letter. Who would deliver this letter to God? Never in his career as a postman had he known that address. क्योंकि गॉड का तो कोई एड्रेस ही नहीं है. वो हर जगह है लेकिन कहीं भी नहीं है. The postmaster, a fat, amiable, means friendly person. He also started laughing like anything. Yeah, what this person is doing, he's writing a letter to God. But almost immediately, he became serious. Tapping the letter on the desk, suddenly he realized that this person had a great faith in the God. What faith? I wish I had the faith of the man who wrote this letter. शायद मेरे पास भी इतना भरोसा होता जितना भरोसा इस आदमी को है इस लेटर पर. Starting up a correspondence with God. भगवान को लेटर लिख रहा है. So in order to not to shake the writer's faith in God, मतलब उसका भरोसा भगवान में से नहीं उठ जाए, उसकी वजह से पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया. He came up with an idea. He wanted to answer the letter, but when he opened it, it was evident, means it was obvious that he needed something more than only goodwill
इंक एंड पेपर, मतलब उसकी इच्छा इंक और पेपर से कुछ नहीं होना था, कुछ पैसे भी देने पड़ते। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही वॉज फर्म दैट आई वॉन्ट टू हेल्प दिस पर्सन। सो ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने एम्प्लॉयज से भी पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा उसने दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। इस एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए सब लोग तैयार हो गए, थोड़े थोड़े पैसे देने लगे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसो, उसके लिए ये इतने सारे 100 पैसोज इकट्ठे करना मुश्किल था, इसलिए उसने सबकी हेल्प मांगी। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटर मोर देन हाफ, मतलब वो 100 पैसो नहीं बेच पाया। ही गिव समथिंग मोर देन 50 पैसोज। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एंड एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड। कुछ नहीं लिखा उसने, पैसे भेजो, नीचे लिखा था गॉड, मीन्स भगवान ने आपको मदद की। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर। उसने पोस्ट ऑफिस में आके पूछा, उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि मुझे भगवान जरूर हेल्प करेंगे। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु एंडर द लेटर टू हिम, पोस्टमैन ने उसको लेटर दिया। एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मतलब संतोष, ऑफ अ मैन हु इज परफॉर्म अ गुड डीड, डीड मतलब कर्म, कार्य। अब ये पोस्ट मास्टर ने खुद लेटर दिया और उनको ऐसा लगा, पोस्ट मास्टर वहाँ से देख रहे थे, पोस्टमैन ने लेटर दिया लेंचो को और पोस्ट मास्टर देख रहे थे कि मैंने इतना अच्छा काम किया है, चलो देखते हैं उसके चेहरे पे क्या होता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसे देखने के बाद लेंचो को जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ, उसको ऐसे लग रहा था जैसे किसी को पैसे दिए थे उसने वापस दिए थे। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, कितना ज़्यादा भरोसा था उसको भगवान पे। बट ही बिकेम एंग्री, वाई? बिकॉज दे वर नॉट 100 पैसोस, उसने पैसे गिने और उसको भरोसा था भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही रिक्वेस्टेड, और वो लेंचो को कभी मना भी नहीं कर सकते कि इतना पैसा मांगा है मैं नहीं दूंगा ऐसा। इमीजिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो एंड आस्क्ड फॉर एन पेपर एंड इंक, वो सीधा विंडो पे गया, पेपर और इंक मांगी। एंड ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना स्टार्ट किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मतलब उसकी जो बहुत ही वो टेढ़ी हो गई थी गुस्से से। कॉज बाय द एफर्ट टू हेट टू मेक एक्सप्रेस, और उसको तकलीफ भी हो रही थी लिखने में। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय स्टैम्प, उसने स्टैम्प ली और उस पर चिपकाई और वो लेटर फिर से डाल दिया। देखो लेंचो वो लेटर फिर से लिख रहा है, अब वो पोस्टमैन को दे रहा है। सो ही affixed that stamp on the envelope with the blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, immediately the postmaster went to open it. He thought that postmaster thought that he would have got thanks and reply, but it was not written in the letter. Then what was written in the letter that surprised the postmaster too much? क्या लिखा था? God, भगवान को लेटर लिखा था। Of the money that I asked for, मैंने आपसे जो पैसे मांगे थे उन्होंने, उसमें से आपने सिर्फ 70 पैसोज मुझे पहुंचाए हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी क्या कब भेज रहे हो, जल्दी भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत जल्दी चाहिए। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू दिस मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रुक्स। आप जब भी पैसे भेजो इस पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स, मतलब वो क्रिमिनल्स हैं, वो चीटर हैं, वो मेरे पैसे ले लेते हैं। तो whenever you send the money, don't send through this post office. So this was the reply of Lencho, and definitely, obviously, our postmaster was greatly shocked to receive this reply. हमेशा अच्छा करने से अच्छा नहीं होता, ये पोस्टमास्टर को पता चल गया। So this was all I had wanted to tell you about the first chapter, A Letter to God. We'll soon meet with the second chapter in the second lecture. Bye for now. I am your English coach, Sandeep sir.